माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डार्क एजेस ऑफ यूरोप की और हाउ द थ्योरीज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस वर बीइंग डेवलप्ड। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आई कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक जर्मनी एंड फ्रांस वर कमिंग अप, रोमन एम्पायर इज वीक एंड वी आर नाउ सिटिंग इन 10th 11th 12th 13th 14th and 15th century। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स डेवलप हो गई और हर स्टेट का अपना एक किंग मौजूद है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने पिक कर लिया, विच मीन्स दैट द चर्चेस एंड मॉन्स्ट्रीज एंड द पीपल who were religious had the religious knowledge, number one, and number two, following the Greek and Roman practices, they were very educated people. They became the professional administrators. Now, of course, ये जो religious institutions थे belonging to Christianity, known as churches, most of the land and most of the resources were attached to them. And please remember, this is the time of agriculture economy. Economics में land is a very important resource. तो इन institutions का काम religious practices और spiritual orders को maintain करने के अलावा market और business के order को maintain करना, plus king और prince के palace के governor structure को maintain करना भी इनके जिम्मे था। And tens and thousands of acres of land were attached to the churches of Germany, France, UK, Spain. अब अगर डार्क एजेस यूरोप में थी, तो what happens in Syria and Baghdad? Remember, these were the time when the Syrian and Damascus and Baghdad universities and libraries, they were full of knowledge. लेकिन चूंकि मैनेजमेंट थ्योरीज वेस्ट से आ रही हैं, तो हमें यूरोपियन थॉट ही को लर्न करना होगा कि हाउ इट वाज डेवलपिंग। सो लैंड, thousands of acres attached to the church, the religious people, the priest and the clergy working as professional administrator and bureaucrats, serving the palace of the king, as well as coming up with the practices of the growth of business. और दूसरी तरफ land was of course cultivated by the tenants and the hired laborers. तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेबर इकोनॉमी का तस्वुर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर भी ये टेनेंट और रेंट और हायर्ड लेबर का तस्वुर मौजूद था। तो ज़हन में रखिए कि प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग डन बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल हु वर अटैच्ड विद द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दे वर सर्विंग द पर्पस ऑफ द किंग एंड इट्स पैलेस। मॉक्स, प्रीस्ट्स, बिशप्स, मुख्तलिफ नाम हैं, आपको ज़हन में रखने चाहिए। दे बिकम वेरी स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल and they were very efficient administrator in the 11th and 12th and 13th century. ये तो वैसे ही जब यूरोप बागी हो गया रिलीजन से, क्रिश्चियन रिलीजन से, क्रिश्चियन वैल्यूज से, तो उन्होंने उसको डार्क एजेस का नाम दे दिया। डार्क एजेस नहीं थी। रिलीजियस बिलीफ वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन बिलीफ। Of course, then the body of knowledge which is developed for governance and political issues, and the body of knowledge which is developed for the administration of the state affairs, administration of the business affair. They were passed on to the next generations by whom? By the people who were associated with religious institutions, churches. So church was very influential, and the clergy and the religious people, the priests and the bishops, were very influencing in terms of practices and in terms of theory. In other words, this religious order, Christian religious order,
became a prominent norm not only in the market or the king's palace, but also it influenced the education system of that time. And that is why, please note, universities, the first university which came up in Europe, University of Bologna, अभी भी आप देखेंगे कि सारे यूरोपियन institutions or European higher education institution, they would like to call it Bologna model of higher education. The first university, which was entirely staffed by the religious bishops and clergy and the priests, entirely. इन यूं कह लीजिए कि सारी फैकल्टी जो है वो चर्च से आ रही थी. यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना 1080 में इमर्ज हुई. यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 1150 में इमर्ज हुई. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1167, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1208. हर यूनिवर्सिटी के सेंटर में एक चर्च आपको नजर आएगा और सारी फैकल्टी उस चर्च के साथ रिलेट कर रही है. दे आर द एजुकेटेड पीपल, दे नो द रिलीजियस एजुकेशन, दे नो द बिजनेस एजुकेशन, दे नो द पॉलिटिकल एजुकेशन, दे नो द एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन. तो इसका मतलब यह हुआ कि सिविल सर्विस पर भी जो इफेक्ट है, सिविल सर्विस की एकेडमी पर जो इन्फ्लुएंस है, वो चर्च का था. इवन टुडे ये जो लफ्ज कॉलेज है, आपको पता है कहां से आया? अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम द चर्च. इट इज द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स. अब ये कार्डिनल भी उनकी हायरार्की के अंदर, चर्च के अंदर जो मुख्तलिफ लेवल, पोप इज द हाईएस्ट. अगर आप आज भी कैथोलिक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड द हाईएस्ट रिलीजियस पर्सन whose statements and whose orders are being obeyed by the whole Christian community. पर उसमें कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, और ये वही तस्वर है जो आज कॉलेज के अंदर, कॉलेज के लफ्ज के अंदर मौजूद है. इसलिए कि उस जमाने में कॉलेज के अंदर सारी की सारी फैकल्टी कहां से थी? चर्च से थी. कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट. सो हम लर्न करेंगे कि कैसे फिर ये 15th सेंचुरी तक ये सिचुएशन रही और फिर कैसे 15th सेंचुरी में यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन के जरिए से स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया. वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग.